नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर की यात्रा पर सचिव पी कुमारन ने कहा कि ये यात्रा कल शुरू हुई और 8 अगस्त तक चलेगी। विदेश सचिव ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है। For this special briefing on the state visit of the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. to India. The visit commenced yesterday and will go on till 8th of August 2025. This is the first visit of President Marcos to India in his official capacity. The visit is significant as it comes as we mark the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations with the Philippines in 1949. During this visit, both Prime Minister Modi and President Marcos have agreed to elevate the India-Philippines bilateral cooperation to the level of strategic partnership, aimed at furthering our engagements across a vast number of sectors, including political cooperation, defense, security and maritime cooperation, trade and investment cooperation, healthcare and pharma, cooperation in science and technology, space, connectivity, digital economy, fintech, consular matters, culture, tourism, people-to-people exchanges, and closer cooperation on regional, multilateral and international issues of mutual interest. We have also adopted a plan of action for the period 2025 to 29 to guide our cooperation under the elevated strategic partnership. President Marcos is accompanied by the First Lady, Luis Araneta Marcos, and a high-powered delegation comprising 14 ministers, senior officials and a large business delegation. On his arrival in Delhi, he was accorded a ceremonial reception at Rashtrapati Bhavan this morning. This was followed by a visit to Rajghat, where the President paid respects to Mahatma Gandhi. President Marcos then held wide-ranging and productive bilateral talks with the Prime Minister, initially in the restricted format and then in the full delegation format. The Prime Minister also hosted a lunch for him. President Marcos will be meeting Rashtrapati Ji during this visit later today. The Honorable Rashtrapati Ji will also be hosting a banquet in honor of President Marcos. The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, also called on President Marcos yesterday. Several agreements, MOUs, were concluded and exchanged during the visit. There were 11 of them. 14 of them. These include mutual legal assistance treaty in criminal matters, a treaty on transfer of sentenced persons, terms of reference on negotiations for the India-Philippines Preferential Trade Agreement, terms of reference for service staff talks, Army, Air Force and Navy, enhanced cooperation between Coast Guards, statement of intent on cooperation in space, cultural exchange program, a program of cooperation in science and technology, an MOU for cooperation in digital technologies, and an implementation program for tourist cooperation. To commemorate the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations, Prime Minister Modi and President Marcos also jointly issued a commemorative stamp themed on the national flowers, lotus for India and Sampagita, a variety of jasmine on the Philippines side. We are happy that direct flight connectivity between India and the Philippines is likely to be operationalized in the coming months. India has announced gratis e-tourist visa for Philippines nationals. The Philippines has made visa-free entry possible for Indian tourists up to a period of 14 days. We expect that
These measures would bolster our tourism exchanges, commercial linkages, and people-to-people interactions. उधर थाना साइबर क्राइम सर्विलांस टीम नोएडा और थाना फेज 1 पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कॉल सेंटर के माध्यम से लोन देने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए और उनके कब्जे से 43 लैंडलाइन फोन, 21 मोबाइल फोन और 5 लैपटॉप्स और 61 सिम कार्ड और 36 सिम कार्ड के खाली लिफाफे और अनाधिकृत डाटा की 10 फाइलें बरामद की हैं। के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और एडिशनल सीपी जो साइबर हैं उनके नेतृत्व में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है थाना फेज 1 में। इसमें कुल 11 जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनसे जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो इसके मुख्य जो मास्टरमाइंड थे गौरव जोशी और उनकी पत्नी नेहा, ये लोग मौके पे मिले नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी की गई तो इसका मुख्य काम जो देखता था वो विक्रम सिंह देखता था। उसने बताया कि हम लोग कॉल सेंटर चलाते थे जो लोनिंग के नाम पे लोगों को टारगेट किया करते थे लोन देने के नाम पे, और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कराते थे। इंश्योरेंस के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराते थे और उसके बाद वो पैसे जमा करा लिया करते थे उनको इंश्योरेंस के नाम पे, क्योंकि अथराइज नहीं थे लोन देने के लिए तो लोन देते नहीं थे और इंश्योरेंस के नाम पे पैसे जमा करा लिया करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पे भारी मात्रा में लैपटॉप, आईपैड, फोन और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। अभी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। अकाउंट के डिटेल मिले हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पूरे पैन इंडिया ये नेटवर्क चला रहे थे और काफी समय से चला रहे थे, तो इनके पास से काफी ज्यादा डेटा मिला है जो एक्सेल शीट में डेटा है और उसको एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि टाइम लगेगा इसको एनालाइज करने में और ये पूरा डेटा एनालाइज किया जा रहा है। पॉलिसी साइज नहीं थे लोन देने के लिए, क्योंकि लोन एक बैंकिंग प्रक्रिया है, बैंक ये थे नहीं, ये केवल फर्जी लोगों को कि हम तुम्हें इतने निश्चित रूप से जितनी भी डिमांड होती थी किसी व्यक्ति की उतना, जैसे कॉल आता है आप लोगों के पास या किसी के पास की ये हम तुम्हें 5 लाख रुपए लोन देंगे, 10 लाख रुपए लोन ले लीजिए, तो उसमें लोग ट्रैप में आते थे। पर्सनल लोन या हाउस लोन या व्हीकल लोन इस टाइप के लोन में ट्रैप में आ जाते थे और उसके बाद ये लोग उसको कहते थे पहले आपको इंश्योर कराना पड़ेगा इस लोन को, जिससे कि आपका अगर जमा नहीं हो पाता है पैसा तो आप इसको वो कर लेंगे, मतलब हम रिकवर कर लेंगे उसके थ्रू, बीमा के थ्रू। जो पॉलिसी कराते थे उसमें ये लोग हेरा फेरी करते। लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी, इसको ट्रैप किया गया और उसके बाद ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें इनको काफी अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था, 40 से 60% तक कमीशन। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का दौरा किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 958 करोड़ की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए, वहीं सहायता राशि भी सौंपी। योजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के ठीक पूर्व जनपद अलीगढ़ को प्राप्त हो रही है। मैं अलीगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देते हुए इन परियोजनाओं के लिए एक सार्थक प्रयास के लिए मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, अलीगढ़ में पेयजल की पुनर्गठन स्कीम का लोकार्पण हो रहा है। यहां पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अकरौली से अतरौली रेलवे स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण हो रहा है। साथ ही अतरौली में एक डिग्री कॉलेज के लोकार्पण के साथ ही अलीगढ़ नगर में स्काई टावर परिसर में 900 किलोमीटर
क्षमता का एक जलाशय का लोकार्पण किया जा रहा है और इसके साथ ही यहां पर अलीगढ़ से जुड़ी हुई ढेर सारी योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम जो आने वाले समय में अलीगढ़ को एक नई पहचान देने वाले हैं, इन सभी परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए अलीगढ़ वासियों को, आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, आज प्रातःकाल ही मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अलीगढ़ मंडल की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए परियोजनाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा करने, शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण का भी ये समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत के एक उदयमान अलीगढ़ के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सफेद कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी की। उनके सामने वो दृश्य बढ़ता है और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहां के विकास की एक व्यापक रूपरेखा खींच करके अलीगढ़ के समग्र विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़े हुए उन सभी समूहों को हम लोगों ने बाद में ओडीओपी का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सरदेव बाबूजी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग के लिए ताला नगरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था दे करके उसको एक पहचान दिलाने का काम उसको पहले प्रारंभ किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उनके सपनों को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, विकास के माध्यम से और समृद्धि के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा के साथ से जोड़ने में आज हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसके पीछे हमने प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ ही सरदेव बाबूजी की उस परिकल्पना को जो उन्होंने दशकों पहले सोचा था, आज जमीनी धरातल पर उतारने में हमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम को बनाइए, साथ साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया है और राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ की पहचान के साथ अलीगढ़ को एक नई उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। बहनों और भाइयों, भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगांव में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है, क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। भी प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। अब तो ब्रह्मोस मिसाइल भी उत्तर प्रदेश में बनने लग गई है। याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। पाकिस्तान ही नहीं, भारत के हर दुश्मन के पसीने पसीने करने का काम अगर किसी ने किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसका एक कारण है। बहनों और भाइयों, ये ड्रोन जो आज बन रहे हैं, यह भी इसी अलीगढ़ में और प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो निवेश हुए हैं उसका परिणाम है। तो अलीगढ़ को आज अपने विकास की एक शानदार यात्रा के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अच्छी सड़कें, 4 लेन 2 लेन की सड़कों के लिए भी जाना जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जाना जा रहा है, विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जा रहा है और बेहतरीन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज अलीगढ़ की अपनी एक नई पहचान बन रही है। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार इन सभी सुविधाओं को बिना भेदभाव के आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, बिना भेदभाव तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा भी तो कोई दायित्व बनना चाहिए। आपने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। बता दें कि फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर 5 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। भारत की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भले ही नए हैं, लेकिन हमारी सभ्यताओं के संपर्क बहुत प्राचीन काल से है। फिलीपींस की रामायण महाराडिया लवाना
हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का जीवन प्रमाण है। अभी जारी किए गए डाक टिकट जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय पुष्प है, हमारी मित्रता की महक दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक ज्वाइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। वाराणसी में स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इस वाले चावल पर काम कर रहा है। यानी हम साथ मिलकर स्वाद और सेहत दोनों पर काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत हम फिलीपींस में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाएंगे और फिलीपींस में सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग देंगे। धरती पर तो हमारी साझेदारी मजबूत है ही और अब हमने अंतरिक्ष की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आज समझौता भी किया गया है। फ्रेंड्स, मजबूत हो रहे रक्षा संबंध गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मैरीटाइम नेशंस के रूप में दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी। ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हम मिलकर काम करते रहे हैं। आज जब राष्ट्रपति जी भारत में हैं, भारतीय नौसेना के 3 जहाज पहली बार फिलीपींस में नौसैनिक एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत की बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात